कर्नाटक में फिर वही खेल चालू। चुनाव जीता पर सीएम पर संग्राम। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, डीके शिवकुमार या सिद्धरामैया, कौन होगा सरदार? क्या खड़गे बनेंगे खेवनहार या जीतकर फिर कांग्रेस में होगी दोपहर? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। 2015 के बाद कांग्रेस ने कोई बड़ा राज्य है जो अपने नाम किया है। पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल के बाद कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस ने बड़े बहुमत से जीत लिया। एक बड़ा राज्य है जो इस वक्त कांग्रेस के हाथ लगा है। कांग्रेस यहां बिना किसी सहयोग के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को 136 सीटें मिली। जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक को दिया गया। जीत बड़ी थी तो जश्न भी मना और कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सीख रही है, ऐसा भी लगा। लेकिन कर्नाटक में सीएम को लेकर एक बार फिर से मचे घमासान को लेकर लगता है कि कांग्रेस में फिर पुराना खेल चालू हो गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान की तरह ही लगता है कि कर्नाटक का नाटक भी कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से जीतने वाली कांग्रेस के लिए सरकार बनाना आखिर क्यों टेढ़ी खीर होता जा रहा है। क्यों डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया को आला कमान समझा नहीं पा रहे। वो कौन से 4 फॉर्मूले हैं जिन पर कांग्रेस आला कमान विचार कर रहा है। यही नहीं, इससे पहले वो कौन से राज्य हैं जहां कांग्रेस जीतकर भी सरकार गंवा चुकी है, उनकी भी होगी बात। और कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्यों कहा जा रहा है कि कहीं कर्नाटक को खो ना दे कांग्रेस। कर्नाटक में सीएम फेस पर नाटक। कांग्रेस में कर्नाटक में इस वक्त 2 धड़े बने हुए हैं। एक तरफ है पूर्व सीएम सिद्धरामैया और दूसरी तरफ है कांग्रेस के मौजूदा कर्नाटक अध्यक्ष और कांग्रेस के खेवनहार डीके शिवकुमार। दोनों ही नेता कर्नाटक में रसूख रखते हैं और दोनों के ही कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को सीएम बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पार्टी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ाते जा रही है। We will leave to the High Command. My party High Command will take its call. I have not decided to go to Delhi still because today I have lot of my people coming from all over the state. I have some small rituals in my house. Today is my birthday. Today is my birthday. So some pujas, I have to go to my temple, which I believe. I have to go there, seek his blessings. That's all. Sir, will we see High Command now being announced? I don't know. I don't know. Whatever job I have to do, I have done. But I have seen that there are conditions only if the parties agree to those conditions that they will get into analysis. That's what I have heard. But anyway, we will see. We are confident we are going to get a majority. So I think we won't be needing any other party's alliance. But in case if it doesn't get a majority, then our leaders, Delhi leaders and our state leaders will decide what will be the course of action. If something went wrong and Congress get 101.5 or middle of something, is there any chances to contact JDS? Is there any backup plan which had? As I told, I don't know what our leaders have done in case if it doesn't get a majority. Whether they have already in talks with other parties or the independents, I don't know about that because I'm a small player in the party. I'm new to politics, but whatever the call the leaders take, we will follow it, and it is necessary for this in the interest of state to keep BJP out of power. For that, we will do anything. Do you see your father as a CM again? Because he was a former CM. Yes. As a son, definitely I would like to see him as a chief minister. But as a citizen of, citizen of the state, I think in the last regime he had given very good governance, and this time also if he becomes a chief minister, whatever the corruption and the misrule the BJP government had given, those things will be get corrected by him. So in the interest of the state also, I think he should become CM. Any message to BJP?
nothing. I don't have anything message to the opposition parties. We are only concerned about our win. That's all. कर्नाटक में सीएम फेस को लेकर मचे बवाल पर अगर जल्द ही कांग्रेस ने कोई रास्ता नहीं निकाला तो वो दिन दूर नहीं कि कर्नाटक का हाल भी मध्य प्रदेश वाला हो जाएगा। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस को अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की जरूरत है। इसके लिए कुछ कड़े फैसले लेने की भी जरूरत है, वरना जीती बाजी कब हाथ से निकल जाएगी कांग्रेस ये समझ भी नहीं पाएगी। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान वो कौन से 4 रास्ते हैं जिनके ऊपर जाने का मन बना रहा। कांग्रेस के पास 4 फॉर्मूले। डीके शिव कुमार बने विधायक दल के नेता। कर्नाटक में कार्यकर्ताओं के बीच हो या आलाकमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सबसे ज्यादा कांग्रेस के भीतर से यही आवाज उठती दिख रही है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को विधायक दल का नेता बनाया जाए। विधायक दल का नेता चुना जाना यानी कि उस राज्य में पार्टी की सीएम या सबसे बड़े पद पर वही आदमी बैठेगा। पिछले 5 राज्यों की जीत को देखें तो 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले को अपनाया है। प्रदेश अध्यक्ष को ही विधायक दल का नेता पहले चुना गया और बाद में उन्हें सीएम की कमान दी गई। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट को विधायक दल का नेता चुना और उद्धव सरकार में वो मंत्री भी बने। कांग्रेस में शुरू से परंपरा रही है, यहाँ जिसके नाम पर प्रदेश में चुनाव लड़ना होता था उसे ही पूरा पावर देकर पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर टिकट बंटवारे से लेकर हार जीत तक की सारी जिम्मेदारी उसी शख्स की रही। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद कांग्रेस का नियम यही था, लेकिन बाद में कई जगह दूसरे फॉर्मूले भी अपनाए गए। मसलन कर्नाटक के ही पिछले चुनाव को देखें तो 2013 में कर्नाटक के अध्यक्ष सिद्धारमैया सीएम बने तो 2012 में हिमाचल के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह सीएम बने। अगर ऐसा हुआ तो डीके शिव कुमार का सीएम बनना तय मान किसी नए चेहरे को मौका दिया। कांग्रेस में इस वक्त अगर संगठन के लिहाज से देखें तो संगठन उतना ताकतवर नहीं जितना बीजेपी का है। बीजेपी में ऐसे किसी भी सिचुएशन में पार्टी आलाकमान सर्वोपरि होता है, लेकिन लगातार कई हार झेलने के बाद कांग्रेस में कई बार आलाकमान के फैसले को प्रदेश के नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया। फिर राजस्थान में पायलट गहलोत विवाद हो या मध्य प्रदेश में सिंधिया का अपने नेताओं के साथ लेकर बीजेपी की सरकार बना देना हो, कई ऐसे उदाहरण सामने हैं। इसमें पार्टी आलाकमान द्वारा गहलोत को अध्यक्ष बनाए जाने को भी गहलोत का मना कर देना भी शामिल होगा। ऐसे में कांग्रेस ने सीख लेते हुए लड़ने वाले 2 नेताओं को छोड़ किसी तीसरे को कमान देने का काम किया। पंजाब और हिमाचल इसका ताजा उदाहरण। 2021 में हाईकमान से नाराज होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद छोड़ा तो कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन जो 2 प्रमुख दावेदार थे वो थे सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन पार्टी ने ऐसी खाट खेलते हुए तीसरे नाम को यानी कि चन्नी को सीएम बना दिया। वहीं पिछली हिमाचल की जीत को देखें तो प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री में विवाद चरम पर था। खूब बवाल हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, सड़कों पर भी लोग उतरे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने लड़ाई से इतर सुक्खू के नाम पर मोहर लगा दी। लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। हिमाचल में तो सरकार अभी चल रही है, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो किसान आंदोलन के बाद जिस पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनना तय माना जा रहा था, उसी पंजाब में कई धड़े बन जाने के चलते कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हारी थी। इन दोनों ही नामों में अंदर खाने खबर यह भी आई कि राहुल गांधी की पसंद के नामों को मौका दिया गया। हालांकि इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है और कर्नाटक सीएम के नाम पर गांधी फैमिली ने भी किसी के नाम के कोई संकेत नहीं दिए। लेकिन अगर राय मांगी गई तो लगता है कि इसमें भी डीके शिव कुमार बाजी मार जाएंगे। एक को सीएम पद, एक को मलाईदार मंत्रालय। कर्नाटक बड़ा राज्य तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक भारत का वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा फंड जनरेट होता है। इस मौके पर जबकि आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए फंड की दरकार होगी और इस मौके पर कर्नाटक कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं और इसीलिए कांग्रेस इसे इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। साथ ही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों में से किसी की भी नाराजगी राज्य का समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ देगी। ऐसे में पार्टी तीसरा फॉर्मूला यानी कि दोनों को खुश करने की कोशिश करेगी। इस कंडीशन में एक सीएम और एक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अगर यह फॉर्मूला लागू हुआ तो सिद्धारमैया जो पहले सीएम रह चुके हैं उन्हें ही दोबारा सीएम बनाया जाए, क्योंकि डिप्टी सीएम उनका डिमोशन होगा और उस पर वो राजी नहीं होंगे। और अगर ऐसा होता है तो डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे और उसके साथ ही उनके गुट के लोगों या फिर जिन्हें वो कहेंगे उन्हें मलाईदार मंत्रालय दिए जा सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब वो इस पर राजी होंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को राजस्थान में पहले भी कांग्रेस ने लागू किया था, जहां गहलोत मुख्यमंत्री बने और पायलट डिप्टी सीएम बनाए गए। और आज वहां क्या हाल है हर किसी को पता है। सीएम गहलोत के खिलाफ पायलट पार्टी लाइन से इतर जाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए और कई बार तो स्थिति ये तक बनी कि सरकार गिरी की तब गिरी
और इत्तेफाक देखिए, ऐसी जब भी सिचुएशन बनी, उन विधायकों की किलेबंदी के लिए जिस नेता ने पार्टी को बचाया था, वो नाम था डीके शिव कुमार का। सोचिए अब जरा, अगर वही डीके शिव कुमार पार्टी तोड़ने पर आ गए तो क्या पार्टी उस दंड को झेल भी पाई? चौथा फार्मूला, 2 और 3 साल का फार्मूला। ये एक और फार्मूला है जिस पर कांग्रेस में चर्चा है और यह फार्मूला सिद्धारमैया की तरफ से आलाकमान को सुझाया गया है। ऐसी जानकारी आ रही है, सिद्धारमैया ने कहा है कि वो सिर्फ 2 साल तक ही सीएम बने रहना चाहते हैं और इसलिए सिद्धारमैया ने यह फार्मूला दिया है कि उन्हें 2 साल सीएम बनाया जाए और डीके शिव कुमार को बाकी के 3 साल के लिए सीएम बनाया जाए। लेकिन इस पर डीके का राजी होना जरूरी है और इसमें संशय ये भी है कि ये दोनों में से पहले कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर एक नया विवाद छिड़ सकता है, क्योंकि यही फार्मूला छत्तीसगढ़ में अंदर खाने होने की खबरें कई बार सामने आती रही। खबरें तो ये भी है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को इसी फार्मूले पर राजी किया गया था, लेकिन पहले सीएम बने बघेल ने बाद में हटने से मना कर दिया और टीएस सिंहदेव इस फार्मूले से खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। तो इस बात पर बवाल होना तय। अब देखना यह होगा कि पार्टी इस मामले को कैसे सुलझाएगी, क्योंकि जरा सी गलती बड़ा खामियाजे का कारण बनेगी और अगर हालात ऐसे ही रहे जो इस वक्त हैं तो कर्नाटक का नाटक कांग्रेस को ले डूबे।